हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। और आज का हमारा टॉपिक है 9th स्टैंडर्ड साइंस पार्ट 1 चैप्टर नंबर 14 सब्सटेंसेस ऑफ कॉमन यूज which comes in chemistry, and this video is the part 2 of this chapter. In the part 1 we have done many topics and learned about different salts also we had like sodium chloride. Then we learned about baking soda, washing soda, even about bleaching powder. And also we have started with the topic about which are the substances that we use in our day-to-day life, what are their importance, and other things and other basics also we did. If you have not seen that video, then you must watch that video. I have given the link in the description box. You must watch that video and then watch this video. In the part 2 of this chapter, we are going to do about radioactive substances, radioactivity, and also about some substances that we use in our day-to-day life, some other substances I am talking about. Now let's start with our today's topic. If you are new on my channel, then please subscribe my channel and also press the bell icon button so that you get the first notification when we upload a video. And also share this video to all your friends so they also get knowledge about this chapter. Let's start with our video. After learning about different substances in the last part of this chapter, in which we had learned about bleaching powder, its properties and uses, sodium chloride, baking soda, its properties and uses, so we had learned about them in detail. Now we will learn about some other salts or some crystalline salts that we know or we use in our daily life. Crystalline salts, what I mean by crystalline salts, I hope that you remember. In the 5th chapter, that is acid, bases and salts, we have learned about water of crystallization. Some crystalline salts you have learned about water of crystallization in the 5th chapter. We use various salts which contain water of crystallization. We use different salts like we learned about washing soda, but before becoming washing soda, the sodium carbonate has 10 water of crystallizations. I have told about it in the last part when we are doing about washing soda. Now let's learn about some other substances. You have learned that alum is used in the process of water purification. Because of property of coagulation, the solid impurities in water come together and become heavy and settle to the bottom. As a result, the water above becomes clear. So, I hope that you know about alum. एलम को हम लोग यूज़ करते हैं फॉर वाटर प्योरीफिकेशन. उसे पानी में डालते ही वो जो भी डर्टी पार्टिकल्स होते हैं वो सीधा नीचे बैठ जाते हैं और ऊपर का जितना भी पानी होता है वो क्लियर हो जाता है. So this is a type of water purification. I think so. This is done in villages. वहाँ पर लोग एलम का यूज़ करते हैं, उसे पानी में डालते हैं और सारा जो भी, या फिर एलम को पानी में डालते हैं या फिर एक वो क्रिस्टलाइन एलम का भी यूज़ कर लेते हैं. उसे से पानी में गोल गोल घुमाते हैं तो सारा जो भी dirty substances है वो सब they go at the bottom and the above water becomes clear. Okay, this is the use of alum for water purification. Blue vitriol. Do you know what is blue vitriol? I hope that you remember. We have learned about an experiment of copper sulfate for learning about water of crystallization in the 5th chapter, acid, bases and salt. So blue vitriol is nothing but copper sulfate. Copper sulfate is used in the blood test for diagnosing anemia. So for diagnosing anemia, copper sulfate is used in the blood test. Okay, remember this. And the Bordeaux mixture, which is used as a fungicide on fruits like grapes, muskmelon, slaked lime, it is used with blue vitriol. So with blue vitriol, Bordeaux mixture is used for as a fungicide. मतलब फंगीज को प्रिवेंट करने के लिए, उन फ्रूट्स पे ग्रोथ उनका प्रिवेंट करने के लिए ब्लू विट्रियल और बॉडेक्स मिक्सचर को साथ में यूज़ किया जाता है फॉर फ्रूट्स लाइक ग्रेप्स, स्लेक्ड लाइम्स, मेलन, मस्क मेलन एक्सेट्रा. सो ये हम लोग बात कर रहे थे जो सब्सटेंसेस जो हम डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हैं उनका
यूजेस क्या है इसके बारे में हमने बात की. Now let's learn about some substance in our daily use which contain water of crystallization, जो कि हमने अभी भी बात की. वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन मतलब, मैं एक बार फिर से आपको रिमेंबर करवा देता हूँ. वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या होता था, एक ये जो हमारे बहुत सारे सॉल्ट्स हैं ना, वो सब क्रिस्टल फॉर्म में होते हैं, क्रिस्टलाइन फॉर्म्स. वो क्रिस्टलाइन फॉर्म्स में कुछ ड्रॉप्स ऑफ वाटर होते हैं जिन्हें हम बोलते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन. वो अगर उन्हें हम हीट करते हैं तो वो क्रिस्टलाइन फॉर्म में से जो ड्रॉप्स ऑफ वाटर होते हैं उन्हें वो ये हो जाते हैं, दे आर इवेपोरेटेड. तो उसी तरह उन्हें इवेपोरेट किया जाता है. उसके बाद जो भी बाकी के क्रिस्टल्स बचते हैं उससे पाउडर या फिर बहुत सारी चीज़ें बनाई जाती है. सो दैट इज़ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, द वाटर इनसाइड द क्रिस्टल्स of these substances. So let's learn about some substances in our daily use which contain water of crystallization. First is alum, that we see now only. We call it as potash alum. Potash alum. Its formula is little difficult. K2SO4 dot Al2SO4 in the bracket whole wise we can say, and whole wise 3. That is, it is for S also and O4 also. Dot 24H2O means how many drops of water of crystallization is there? There are 24 water of crystallization in alum. Borax, Na2B4O7 dot 10H2O. So there are 10 drops of water of crystallization in borax. Epsom salt, magnesium sulfate, actually it is magnesium sulfate. So Epsom salt is very important. Remember this formula. MgSO4.7H2O. There are 7 drops of water of crystallization in Epsom salt. Barium chloride, BaCl2.2H2O. So there are 2 drops of water of crystallization in barium chloride. Sodium sulfate. Sodium sulfate's this name, what we say, generally it is known as Glauber's salt. So what is the second name or the chemical name of Glauber's salt? This question can come. So it is sodium sulfate, Na2SO4.10H2O. And again I would like to remember it. Magnesium sulfate's general name is Epsom salt. Now only we learned about it. So remember this. The sodium sulfate is known as Glauber's salt and magnesium sulfate is known as Epsom salt. Okay. Now we will learn about soap, साबुन. अब आप बोलोगे साबुन के बारे में क्या पढ़ना. साबुन मतलब हमारे बॉडी को क्लीन करने के लिए यूज़ किया जाता है, अच्छी अच्छी खुशबू देता है हमारी बॉडी को. बट हाउ इज़ अ सोप प्रोड्यूस्ड, वी नीड टू नो. हमें भी पता होना चाहिए कि उस सोप जो हम लोग रोज़ अपनी बॉडी को लगाते हैं वो हमारे लिए अच्छा है कि नहीं, है ना. ऐसे ही हम लगाते जा रहे हैं, हम लोग को कुछ हो गया तो उसके बारे में पढ़ते हैं. When oil or animal fat is boiled with an aqueous solution of sodium or potassium hydroxide, sodium or potassium salts of carboxylic acids, that is fatty acids, are formed. So what here is the condition that when oil or animal fat is boiled with an aqueous solution of sodium or potassium hydroxide. मतलब हम लोग क्या कर रहे हैं, ऑयल या फिर एनिमल फैट को एक एक्वेस सोल्यूशन ऑफ सोडियम और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड. एग्जांपल लेते हैं, ऑयल को सोडियम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को हमने ऑयल में डाला और उसे बॉईल किया तो जो कुछ सॉल्ट्स बनेंगे जो कि it forms some salts of carboxylic acids, that is fatty acids. ये फॉर्म होते हैं और these salts are called soaps. So soaps क्या है ये हम एक्सप्लेन करता हूँ मैं आपको. अब यहाँ पर इन्होंने बोला है कि जब ऑयल है, ऑयल में हम लोग अगर पोटेशियम या फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड को बॉईल करेंगे, ऑयल या फिर एनिमल फैट किसी में भी पोटेशियम या सोडियम हाइड्रोक्साइड को, पोटेशियम या फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड किसी को भी बॉईल करेंगे तो देयर फॉर्म सम सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स. ओके, तो विच आर कॉल्ड एज
सोप, दीज सॉल्ट्स आर कॉल्ड एज सोप्स। फिर उनको अच्छे से शेप दिया जाता है और उनमें और भी केमिकल्स ऐड करते हैं ताकि उनमें अच्छी फ्रेगरेंस आए। फ्रेगरेंस मीन्स ओडर। When soap is mixed with hard water, calcium and magnesium salts of fatty acids are formed. को सोप को अगर हम लोग हार्ड वाटर के साथ कपड़े हार्ड वाटर में धोने के टाइम उसके साथ मिक्स करेंगे तो कैल्शियम और मैग्नीशियम सॉल्ट्स फॉर्म होते हैं, जिसकी वजह से पानी और हार्ड होता है। These being water insoluble, they form a precipitate and that is why leather is not formed. तो ये जो कैल्शियम और मैग्नीशियम सॉल्ट्स जो फॉर्म होते हैं हार्ड वाटर में रिएक्ट सोप और इसके रिएक्ट करने से हार्ड वाटर के, तो ये जो कैल्शियम और मैग्नीशियम सॉल्ट्स के वजह से ही वो वहाँ पर लेदर फॉर्म नहीं होता। आई होप मैंने आपको लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि वॉशिंग सोडा को हम लोग यूज़ करते टू मेक हार्ड वाटर सॉफ्ट। हार्ड वाटर ही कैसे होता है, क्योंकि उसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम सॉल्ट्स होते हैं रिएक्ट करते हैं। सोप में जो होते हैं कैल्शियम और मैग्नीशियम सॉल्ट्स वो हार्ड वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं जब कपड़े धो रहे होते हैं, तो उसकी वजह से वहाँ वो वाटर और हार्ड होता है और वहाँ पर लेदर फॉर्म नहीं होता। ओके, याद रखिए। यहाँ पर अभी एक टेबल दी है आपके टेक्स्ट बुक में। कंप्लीट द टेबल बाय राइटिंग द डिफरेंसेस बिटवीन बाथिंग सोप एंड वॉशिंग सोप। बाथिंग सोप, वॉशिंग सोप, अब इसके आपको इसका सबसे ज़्यादा डिफरेंस पता ही होगा कि बाथिंग सोप इज़ सॉफ्ट एंड वॉशिंग सोप थोड़ा सा कड़क होता है ना। आपने ऑब्जर्व किया होगा, आपके घर में भी होगा। बाथिंग सोप एज कम्पेयर टू वॉशिंग सोप इज़ वेरी सॉफ्ट बिकॉज वी यूज़ इट फॉर बाथिंग ऑन आवर बॉडी, so it should be soft. And washing soap is hard because we used to हम उसे घिसड़ते हैं कपड़ों पे, तो इसीलिए वो हार्ड है और हार्ड ही होना चाहिए। फिर केमिकल या फिर साइंटिफिकली क्या डिफरेंस है उनमें। हाई ग्रेड फैट्स एंड ऑयल्स आर यूज्ड एज द रॉ मटेरियल फॉर बाथिंग सोप। Very important difference between bathing soap and washing soap. This can come as a distinguish between. So bathing soap, in bathing soaps, high-grade fats and oils are used as the raw material. But in washing soap, there are very low-grade fats and oils are used. अब मैंने अभी आपको बताया था कि ऑयल में उसके ऑयल के साथ सोडियम या पोटेशियम के हाइड्रोक्साइड को हम बॉईल करते हैं तो कुछ देयर फॉर्म सोडियम एंड पोटेशियम सॉल्ट्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड के सॉल्ट्स बनते हैं, जो वही उसी को हम बोलते हैं सॉल्ट। तो यहाँ पर इसलिए ऑयल्स और फैट्स के रॉ मटेरियल्स का यहाँ पर बात चलती है, बात डिफ्रेंशिएट है। फिर और कुछ डिफरेंशिएट्स मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि एक्सपेंसिव परफ्यूम्स आर एडेड इन बाथिंग सोप बट इन वॉशिंग सोप चीपर परफ्यूम्स आर एडेड, क्योंकि उसमें ज़्यादा परफ्यूम फ्रेगरेंस की ज़रूरत नहीं है ना, क्योंकि वो हम अपने बॉडी पे नहीं लगा रहे, हम तो कपड़ों के लिए यूज़ कर रहे हैं। लेकिन बाथिंग सोप में तो हम बॉडी में लगा रहे हैं, इसलिए अच्छी ऑर्डर हमें बॉडी को मिलती है ना उससे। फिर इन बाथिंग सोप्स नो फ्री अल्कली कंटेंट प्रेजेंट टू प्रिवेंट इंजरीज टू स्किन, बट इन वॉशिंग सोप सम फ्री अल्कली प्रेजेंट फॉर क्लीनिंग एक्शन। ओके, तो अल्कली यानी कि बेसिस, कुछ बेसिस प्रेजेंट होते हैं जो फ्री बेसिस। एक्चुअली सोप इज़ अ बेसिक इन नेचर, बट बाथिंग सोप में ना कोई भी फ्री अल्कली नहीं होती, जो कि नो फ्री अल्कली कंटेंट प्रेजेंट टू प्रिवेंट इंजरीज टू स्किन, but in washing soap there are some free alkali present for cleaning actions. So this was some differences between bathing and washing soap that I told you. You can note them. Now let's learn about radioactivity. अब इसके नाम सुनते ही आपको याद आता है बम, ब्लास्ट, धमाका। ऐसा क्यों? रेडियो एक्टिविटी क्या सिर्फ बम ब्लास्ट से ही रिलेटेड है? आपको कितना पता है रेडियो एक्टिविटी के बारे में? डू यू नो अबाउट रेडियो एक्टिविटी? व्हाट इज रेडियो एक्टिविटी अकॉर्डिंग टू यू? इट इज, आप तो बोलोगे बम, एटम बॉम्ब, धमाका, दिस ऑल इज रेडियो एक्टिविटी। नो, दिस इज नॉट रेडियो एक्टिविटी। रेडियो एक्टिव सब्सटेंस से बनते हैं ये सब हथियार, जैसे कि एटम बॉम्ब, तो वो सब रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस से बनते हैं, बट दे यूज रेडियो एक्टिविटी। But there are some very useful uses of radioactivity also. So हमेशा that is a assumption
that radioactivity means, or या फिर radioactive substance means only atom bomb. It is used for only atom bomb. That is a misassumption. Now let's learn about radioactivity. It's a very important topic, so listen it very carefully. I will explain you everything. Elements with a high atomic number such as uranium, thorium, radium have a property of spontaneously emitting invisible, highly penetrating and high energy radiation. This property is called radioactivity. तो मैं आपको एक पहले क्वेश्चन पूछता हूँ. आपको पता है कि ये सब जो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस होते हैं उनके अंदर ये क्या प्रॉब्लम होती है जिसके वजह से वो ऐसी रेडिएशंस देते. ऐसा वो भी एटम्स ही है, लेकिन एटम्स ही है फिर भी बाकी एटम्स की तरह क्यों नहीं है, वो ऐसे रेडिएशंस क्यों देते हैं. ये प्रॉब्लम है कि उनका एटॉमिक नंबर बड़ा है. दे हैव अ हाई एटॉमिक नंबर 92, 93 ऐसे बड़े बड़े एटॉमिक नंबर्स होते हैं. वही सब्सटेंसेस मोस्टली रेडियो एक्टिविटी या फिर रेडिएशंस रिलीज़ करते हैं. जैसे कि यूरेनियम के बारे में सबसे ज़्यादा रेडियो एक्टिविटी में मतलब मोस्टली फेमस है वो यूरेनियम. तो रेडियो एक्टिव में थोरियम, रेडियम, दिस ऑल हैव अ प्रॉपर्टी ऑफ स्पॉन्टेनियस एमिटिंग इनविजिबल हाईली पेनिट्रेटिंग. मतलब हमारी बॉडी को पेनिट्रेट कर देने वाली, मतलब कोई भी चीज़ को पेनिट्रेटिंग, हाई पेनिट्रेटिंग एंड हाई एनर्जी रेडिएशन. दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड रेडियो एक्टिविटी. ओके, सो ये रेडियो एक्टिविटी में क्या होता है, द न्यूक्लियस ऑफ द रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स इज अनस्टेबल बिकॉज वहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रोटॉन्स है, क्योंकि वहाँ उसका एटॉमिक नंबर बहुत ही बड़ा है, हाई, इसलिए वो अनस्टेबल होता है. इसलिए कुछ ऐसे रेडिएशंस एमिट करता है जिनके वजह से जो हमें हार्म कर सकते हैं. A substance having this property is called a radioactive substance. So radioactivity की जो प्रॉपर्टी होती है, जो जिन एटम्स में होती है, उन्हें हम बोलते हैं radioactive substance. A substance having this property is called a radioactive substance. The nucleus of radioactive elements is unstable. Remember this. Radiation occurs from an unstable nucleus. मैंने वही बोला आपको कि जिनकी जो सब्सटेंसेस रेडियोएक्टिविटी एमिट करते हैं, रेडिएशंस एमिट करते हैं, उनके न्यूक्लियस अनस्टेबल होते हैं. उसी की वजह से वो न्यूक्लियस ये करते हैं, रेडिएशंस एमिट करते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेज या फिर रेडिएशंस बोल सकते हैं हम, जो कि हार्मफुल है हमारे लिए, लेकिन बहुत बार यूजफुल भी है डिफरेंट फील्ड्स में. रेडिएशन ऑकर्स फ्रॉम एन अनस्टेबल न्यूक्लियस. Radioactive substances are relevant to our day-to-day life. However, before going further, let us learn something more about these substances. Radioactive substances ना हमारे are relevant, मतलब हमें उनके बारे में पता ही है हमारे डे टू डे लाइफ में. और हम इनके बारे में ज़्यादा पढ़ने से पहले, इनके यूजेस के बारे में पढ़ने से पहले हम लोग पहले इनके पास्ट के बारे में पढ़ते हैं. हाउ दे वर डिस्कवर्ड. 3 types of radiation are given out by radioactive substances. These are alpha, beta and gamma rays. That we will learn in further. First, let's learn about how they were discovered. An introduction to scientists. The French scientist Henri Becquerel was studying pitch blende, a compound of uranium. यूरेनियम का एक कंपाउंड है पिच ब्लेंडे, जो एक फ्रेंच साइंटिस्ट हेनरी बेक्वेरेल स्टडी कर रहा था. अब उसने अनजाने में डिस्कवर की इन रेडिएशंस के बारे में. He had kept some unused photographic plates in a cardboard box in a drawer. A key was lying on the box. Okay, तो इसने क्या किया, उसने किया कि he had kept some unused photographic plates. पहले के टाइम पे ना फोटोग्राफिक प्लेट्स हुआ करती थी. ओके, उनको उसने एक कार्डबोर्ड बॉक्स में रख दिया इनसाइड अ ड्रॉवर. अ की वॉज लाइंग ऑन द बॉक्स. उस बॉक्स के ऊपर एक की थी. ही हैपेंड टू लीव द यूरेनियम कंपाउंड्स ऑन इट. उसने वो यूरेनियम कंपाउंड्स, देखो उसने क्या किया, एक टेबल के ऊपर यूरेनियम कंपाउंड्स रखे, उसके नीचे वाले ड्रॉवर में ही उसने रखा क्या, वो फोटोग्राफिक प्लेट्स का एक बॉक्स, उसके ऊपर एक की थी अंदर. ओके, after a few days he washed the plates only to find that the plates were cloudy and showed the shape of the key. उसे क्या देखने को मिला कि जो प्लेट्स कुछ दिनों के बाद उसने जब उन्हें धोने के लिए निकाला तो उसने देखा कि
वो प्लेट्स क्लाउडी हो गई थी और उनमें की का शेप आ गया था। मतलब देखो आपने क्या देखा है इसमें कि यूरेनियम के कंपाउंड जिसे हम उसने ऊपर रखा था वो टेबल के नीचे उस ड्रॉवर के अंदर तक उसका रेडिएशन गया और उसने की का जो उस रेडिएशन की वजह से फोटोग्राफिक प्लेट्स पे की का पूरी सिंबल आ गया। Okay, as this incident occurred in the dark, Becquerel inferred that the uranium compounds might be emitting from their interiors rays like X-rays which penetrate substances. वही मैंने अभी आपको बोला. These rays were called Becquerel rays. After a few days, Madame Curie discovered similar properties in compounds of thorium. तो इन रेस को बोला गया तभी स्टार्टिंग में Becquerel rays. और उसके कुछ दिन बाद मैडम क्यूरी ने भी थोरियम के कंपाउंड्स में भी ऐसी ही प्रॉपर्टी देखी। इस तरह डिस्कवरी हुई रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस की। नाउ लेट्स लर्न अबाउट नेचर ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस। In 1889, Rutherford discovered that the radiations emitted by radium were of two types. अब रेडियम भी एक रेडियोएक्टिव सब्सटेंस है और उसके रेडिएशंस किस टाइप के, दो टाइप के, ऐसे साइंटिस्ट रुथरफोर्ड ने डिस्कवर किया। दे आर कॉल्ड अल्फा एंड बीटा रेडिएशन। उसने सिर्फ इन दोनों को ही डिस्कवर किया, अल्फा एंड बीटा को, गामा को किसी और ने किया था। Villiers discovered the third type, namely gamma radiation. So who discovered the gamma radiation? Villiers. When these rays are allowed to pass through two oppositely charged plates, they get separated. यानी कि दो oppositely charged plates में से इन radiations को allow करने को, if we allow them to pass, तो फिर वो separate हो जाते हैं, साथ में अलग हो जाते हैं। This method was introduced by Rutherford in 1902, which we will see now. Rutherford and Villiers studied the radiation emitted by radioactive substances. For this purpose, the rays were allowed to pass through an electrical field and a photographic plate was held in their path. तो उन्हें एक एक्सपेरिमेंट किया गया था। उन्होंने क्या किया, उन रेस को इलेक्ट्रिकल फील्ड में से पास करके वहाँ पर बीच में एक फोटोग्राफिक प्लेट रख दी थी इन देयर पाथ। इट वॉज फाउंड दैट द रेडिएशन वॉज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। उसके वजह से रेडिएशन 3 पार्ट्स में डिवाइड हो गई थी, ऐसा एक्सपेरिमेंट से पता चलता है। वन टाइप ऑफ रेडिएशन deviated slightly towards the negatively charged plate, while the second type of radiation deviated substantially towards the positively charged plate. तो एक रेडिएशन नेगेटिवली चार्ज प्लेट की तरफ गया, वहाँ पर 3 रखी थी फोटोग्राफिक प्लेट्स, 2 रखी थी एक्चुअली, और एक गई थी पॉजिटिवली चार्ज प्लेट की तरफ, एक रेडिएशन गया। तो 2 रेडिएशन तो अलग गए। However, the third type of radiation did not deviate at all in the electrical field. The rays which deviated slightly toward the negatively charged plate, तो slightly थोड़ा उस साइड गए, are called alpha rays. Alpha rays actually they are positively charged. That's why they got attracted towards the negatively charged plate. And those rays which divide substantially towards the positively charged plate are called beta rays, which are actually beta rays are negative, but they as they are negative, they were attracted toward the opposite charge, that is positively charged. And those which do not deviate, एक जो थर्ड रे थी गामा रे, वो कहीं पे भी नहीं गई, दोनों में से वो सीधी गई, तो उसे हमने बोला गामा रेज, उन्हें नाम दिया गया गामा रेज, विच आर न्यूट्रल, उनके पास कोई चार्ज नहीं है। दिस इज द पिक्चर ऑफ द एक्सपेरिमेंट। यू कैन सी ना, देर आर 2 प्लेट्स हियर। देखिए, आपने देखा स्लाइटली वो जो येलो वाली यानी कि बीटा रे है, वो तो स्लाइटली पॉजिटिवली चार्ज प्लेट की तरफ गई। ये रेड वाली गामा है, वो सीधी गई है, और ग्रीन वाली आपने देखी जो कि अल्फा रेस है, वो स्लाइटली नीचे नेगेटिवली चार्ज के पास गई। तो ये प्रूफ किया था कि ये पॉजिटिव है नेगेटिव है, इस तरह किया गया था। ओके, ये एक्सपेरिमेंट से हमें पता चलता है। ये देखिए, वो ही एक्सपेरिमेंट थोड़ा सा ज़्यादा अच्छे तरीके में मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पर लीड ब्लॉक की वो रहा नेगेटिवली चार्ज प्लेट, यहाँ पर पॉजिटिवली चार्ज प्लेट। जो हमारी ग्रीन वाली वो अल्फा रेस है, वो थोड़ी सी नेगेटिवली चार्ज प्लेट की तरफ गई,
फिर बीटा रेस थोड़ा सा पॉजिटिवली चार्ज प्लेट की डायरेक्शन में, लेकिन जो रेड वाली हमारी गामा रेस वो सीधी ही गई। और इनकी पेनिट्रेटिंग पावर भी आप देख सकते हैं यहाँ पर कि अल्फा रेस एक पेपर को पेनिट्रेट कर सकती है, उससे ज़्यादा नहीं कर पाई। बीटा रेस एक प्लास्टिक को तक पेपर से होते हुए प्लास्टिक को भी पेनिट्रेट कर सकती है। और गामा रेस की पेनिट्रेटिंग पावर सबसे हाई है, वो पेपर, प्लास्टिक और कंक्रीट को भी, यानी कि एक स्टील या फिर लीड, उसको भी वो पेनिट्रेट कर सकती है। सो गामा रेस आर हाईली पेनिट्रेटिंग। नाउ लेट्स लर्न अबाउट सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अल्फा, बीटा एंड गामा रेस। नेचर ऑफ अल्फा रेस इज करंट ऑफ अल्फा पार्टिकल्स, मतलब उनके पास हीलियम की तरह 2+ पॉजिटिव चार्ज है। दे हैव हीलियम एटम के जैसे, हीलियम एटम के पास +2 पॉजिटिव चार्ज है ना, वैसे ही इनके पास भी, अल्फा रेस के पास +2 पॉजिटिव चार्ज है। इनका ना ज़रा आप इन तीनों का सिंबल्स याद रखना, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। नेचर ऑफ बीटा रेस इज करंट ऑफ बीटा नेगेटिव पार्टिकल्स, दे हैव नेगेटिव पार्टिकल्स, 1 माइनस चार्ज, 1 नेगेटिव चार्ज। नेचर ऑफ गामा रेस, दे आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, उनके पास कोई चार्ज नहीं है, ऐसा कोई करंट नहीं है। मास ऑफ अल्फा रेस is 4.0028 U, means Dalton, it's the symbol, and mass of beta rays is 0.000548 U, that is Dalton. Mass of gamma rays, they have no mass, remember this. Charge of alpha rays is 2 positive charge, charge of beta rays is -1 charge, and charge of gamma rays is electrically neutral are gamma rays, that's why they got straight only. Velocity of alpha rays is 1/5 to 1/20 times the velocity of light. Beta rays velocity is 1/5 to 9/10 times the velocity of light, and gamma rays velocity is same as the velocity of light, exactly same. Okay, deviation in the electric field. Alpha rays are attracted towards negatively charged plate because they are positive charged, so they will attract towards opposite charge, and beta rays are attracted towards positively charged plates as they are negatively charged, but gamma rays are not attracted to any plate. Penetrating power of alpha rays, they can penetrate an aluminum sheet of thickness which is less than 0.02 mm the thickness, and beta rays can penetrate an aluminum sheet of thickness 2 mm. तो यहाँ बस तीनों में एल्यूमिनियम शीट के लिए example, which is 100 times the penetration of alpha rays. So the penetration of alpha rays, if you multiply by 100, it will be equal to the penetration of beta rays. Penetration power of gamma rays can penetrate 15 cm thick lead screen, which is 10,000 times the penetration of alpha particles. Gamma rays का 10,000 टाइम, अल्फा रेस की पेनिट्रेशन पावर को 10,000 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो वो होगी गामा रेस से इक्वल, तो इट इज़ द 10,000 टाइम्स द पेनिट्रेशन पावर ऑफ अल्फा रेस. आयोनाइजेशन ऑफ अल्फा रेस इज वेरी हाई, आयोनाइजेशन पावर ऑफ बीटा रेस इज लो, एंड आयोनाइजेशन पावर ऑफ गामा रेस इज वेरी लो. पावर टू प्रोड्यूस फ्लोरेसेंस of alpha rays it is very high, in beta rays it is very low, and in gamma rays it is only low. Okay, so these were the characteristics that you must remember, and please remember their charge, how positive charge, negative charge, and they are attracted towards which. Now let's learn about uses of radioactive isotopes that we use in our modern life. It is a misconception that radioactive elements are used only for making an atom bomb. Radioactive isotopes are used in various fields as scientific research, agriculture, industry, medicines, etc. Radioactive substances are used in 2 ways. So ये misconception मतलब गलत अफवाह भी हो सकते हैं कि रेडियोएक्टिव सब्सटेंस सिर्फ और सिर्फ या फिर रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स सिर्फ और सिर्फ एटम बॉम्ब में यूज़ होते हैं. दे आर यूज इन डिफरेंट फील्ड्स ऑल्सो, लाइक एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, मेडिसिन के लिए भी यूज़ किया जाता है. उन्हें 2 तरीके से यूज़ किया जाता है. बाय यूजिंग द रेडिएशन अलोन, मतलब उन रेडियोएक्टिव सब्सटेंस को नहीं यूज़ करेंगे, उनकी जो रेडिएशन है सिर्फ उसी को यूज़ करेंगे. या फिर दूसरा तरीका है बाय यूजिंग द रेडियोएक्टिव एलिमेंट इटसेल्फ, कि दूसरा तरीके में हम लोग क्या करेंगे, वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट ही यूज़ करेंगे.
देखो, बाय यूजिंग द रेडिएशन अलोन का मतलब होता है रेडियो एक्टिव एलिमेंट का यूज़ नहीं, उसकी जो रेडिएशंस निकल रही वो उसी का यूज़ करेंगे। बट बाय यूजिंग द रेडियो एक्टिव एलिमेंट इटसेल्फ का मतलब हम पूरे एलिमेंट का यूज़ करेंगे। ओके, दिस इज द डिफरेंस between the two methods of using radioactive isotopes. Now let's learn about two types of radioactivity. First is natural radioactivity. Generally the elements with atomic numbers from 82 to 92 are found to radiate spontaneously in nature. These are called natural radioactive elements. So elements natural radioactivity का मतलब क्या होता है कि जनरली जो elements जिनका एटॉमिक नंबर 82 से 92 में होता है, 92 तक है, उन वो जनरली ये गामा रेस, अल्फा रेस और बीटा रेस को रेडिएट करते हैं। इन्हें हम बोलते हैं नेचुरली रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। अब दूसरी टाइप है रेडियो एक्टिविटी की, आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। द कपल फ्रेडरिक जेलियट क्यूरी एंड आयरीन जेलियट क्यूरी फर्स्ट इन्वेंटेड induced radioactivity. The radioactive elements produced in the nuclear fission processes brought about in the laboratory by bombardment of particles are called artificial radioactive elements. They were awarded the Nobel Prize in 1935 for this invention. So there was a scientist couple, Frederick Joliot Curie and Irene Joliot Curie. They invented artificial radioactive elements. इस आर्टिफिशियली उन्होंने लेबोरेटरी में रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स को बनाया, विच इज़ अ बिग, दैट वाज अ बिग थिंग और बिग डिस्कवरी. फॉर दैट दे बोथ गेट अ नोबेल प्राइज ऑल्सो. I end this lecture here only with the part 2. You will get the notes of this chapter in the last part of this chapter, so stay tuned for the other parts of this chapter. It's a huge chapter, so I'm making it in different parts, but it is also necessary so that you understand and it is not going above your head, so that I am dividing it into parts. I hope that you understand this all part. We will continue this chapter in next part. Thanks for watching. If any doubts, you can ask me in the comment section.